So Swati, age 33, works for a multinational. She looks after her own finances. Although she manages her finance quite well, but due to some wrong decisions, she has been left with a personal loan of rupees 4 lakh for 5 years with an EMI of rupees 9900 per month. As per news from her employer, she may receive a bonus shortly with which she plans to pay off her personal loan. तो ये कुछ पॉइंटर्स इन्होंने दिए हैं इंपॉर्टेंट कि भाई उनका लोन कितने का है. तो लोन इज 4 लाख रुपीज, 5 लाख इज द 10 ईयर EMI है 9900 पर मंथ का. एज है 33 और शी इज गोइंग टू रिसीव अ बोनस और उस बोनस से शी हैज ऑप्शन ऑफ पेइंग ऑफ हर पर्सनल लोन. ऑन द अदर हैंड स्वाति also wants to save for the education of her child. She wants to have a corpus ready in 7 years for this purpose. And okay, for this purpose, she's planning to invest in the bonus in XYZ equity mutual fund. She had already invested rupees 40,000 in this XYZ fund 3 years back, which is currently worth 57,720. The cost of the child's education is currently 5 lakh, and this is likely to go up 10% every year. सो चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड इन्होंने बताया है कि उसकी जो करंट प्राइस है, जो करंट फीस कॉस्ट है वो 5 लाख रुपीज है. दिस इज लाइकली टू गो अप बाय 10% एवरी ईयर. सो मतलब ये एवरी ईयर 10% से बढ़ता जाएगा. सो अगर इन्हें 7 ईयर्स के बाद चाहिए तो पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि 7 ईयर्स के बाद इस 5 लाख की कितनी वैल्यू हो जाएगी इफ इन्फ्लेशन इज 10%. तो फ्यूचर वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी. Then इसके बाद Swati has a short-term goal of buying a car costing rupees 6 lakh. The car dealer has given her two payment options: pay rupees 6 lakh over 4 years with zero interest, or pay full amount as the down payment now and get rupees 15% discount on the spot payment. Swati is also thinking of taking retirement in 20 years, but she wants to be sure that she receives regular income from her investment so that she can meet her essential expenses. For this, she is scrutinizing a perpetual annuity that will pay her rupees 3 lakh every year from the age 50 onward at the yield of 6%. For this, she is required to invest rupees 11,800 for 20 years in this annuity plan. ठीक है, the down payment है 12 lakh rupees का. For this, Swati plans to invest rupees 22,000 per month in a debt fund, which will give her a return of 7% per annum. She also believes that she will receive a salary increment in the next few years, which will allow her to save more and pay in EMI of rupees 55,000 per month. She has decided to restrict the mortgage to 5 years. The cost of property currently is rupees 60 lakh. The home loan rate is 7.5% and inflation is 6%. ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. तो ये कुछ कुछ पॉइंटर्स आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, नहीं भी किए होंगे तो हम उस पर वापस से आएंगे. Now first question is, how can Swati best use the bonus amount? Option A, she should prepay the loan. Option B, she should invest in XYZ mutual fund to help her creating the education amount for her child, with the assumption that the returns of the mutual fund reflect its long-term average returns. तो म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न था, जो अभी तक का रिटर्न था, वही रिटर्न अगर फ्यूचर में मिला तो उन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या उन्हें लोन को पे बैक करना चाहिए. ये दो हमारे ऑप्शंस हैं, ये डिलेमा है जो हमें सॉल्व करना है. सो क्या हमें यहाँ पे करना होगा, हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि रेट ऑफ रिटर्न कहाँ पे ज्यादा है. इज इट द लोन जो ज्यादा कॉस्टली है? अगर लोन पे लेट्स से हमें 20% का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो हम लोग लोन को पहले रीपे करेंगे. और अगर लोन पे 20% का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है लेकिन म्यूचुअल फंड में 25% का रिटर्न मिल रहा है, तो हम लोग उस मनी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे. तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है. अगर लोन ज्यादा कॉस्टली है तो लोन को पहले रीपे करो. अगर म्यूचुअल फंड से रिटर्न ज्यादा अच्छा मिल रहा है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो. जहाँ पे भी बेटर रिटर्न है वहां पे हम लोग मनी को इन्वेस्टमेंट करेंगे. अब बेटर रिटर्न कैसे पता चलेगा? हमको कैलकुलेट करना होगा दोनों का रिटर्न. तो ये दोनों के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. लोन है, लोन में प्रेजेंट वैल्यू 4 लाख रुपीस का लोन है. 5 इयर्स का ड्यूरेशन है तो एंड पर हो जाएगा वो. और
PMT है 99 रुपीज, मतलब एवरी मंथ आपको 99 पे करना है टू रीपे दिस लोन इन 5 years। तो इसका रेट कितना है वो आपको कैलकुलेट करना होगा, रेट आपको कैलकुलेट करना होगा। एंड सेकंड इज म्यूचुअल फंड में प्रेजेंट वैल्यू इज 40,000, फ्यूचर वैल्यू इज 57,000। तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आप 40,000 लगाते हो तो 57,000 हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो एंकर है वो है 3 years। ठीक है, अब आपको निकालना है रेट। आपके पास ये है कि भाई कितना अमाउंट लगाया, कितना होगा और कितने साल में होगा, तो कितना रेट ऑफ रिटर्न मिला वो निकालो। जिसका भी रेट ज्यादा होगा हम लोग बोनस वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। तो बस ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये क्विकली आप लोग नोट कर लो, तो दैट मैं फिर से स्क्रीन शेयर करके विल मूव ऑन टू एक्सेल। ठीक है, अच्छा यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग डायरेक्टली, तो क्विकली हो जाता है। यहाँ भी लिख ही लेते हैं। हमारा पीवी इज, ये लोन का फेस है, लोन पीवी हमारा है 4 लाख। रेट हमें कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल टू रेट, RATE, और ये सारी चीजें हमको यहाँ पे इनपुट देनी होगी। अब देखो सबसे पहले एन पर, यही रेट वाला फंक्शन यहाँ से भी स्टार्ट हो जाता है। तो इन केस अगर आपको वो कंफर्टेबल लगता हो तो आप इस पर क्लिक करके ये रेट वाला फंक्शन भी ओपन कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली आप इनपुट दे सकते हो। तो ये FX पे आपको क्लिक करना होगा इन केस आपको ये वाला विंडो कंफर्टेबल लगता है। सो एन पर यहाँ पे हो जाएगा 5 years, EV इज 4 लाख। अब आपको रिसीव हुआ है 4 लाख, ये लोन लिया है तो ये पॉजिटिव रहेगा 4 लाख। PMT जो आप पे कर रहे हो, लेकिन अब जो हम पे कर रहे हो तो मंथली है और हमने ऊपर एंड पर ईयर्स में लिया है, तो हमें सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ में। तो इंटू 12 कर देंगे हम, तो 5 years इंटू 12 is 60 मंथ्स की बात हो गई। हर महीने कितना पे कर रहे हैं हम लोग? 9900, क्योंकि हम लोग पे कर रहे हैं इसलिए मैंने माइनस में लिखा है, तो माइनस 9900। यहाँ पे आपका रेट कितना आया? रेट हमारा हो गया 1.4। नाउ दिस 1.4 इज पर मंथ, क्योंकि हमने सारी चीजें मंथ में कर ली थी, PMT भी मंथ में लिया था, ईयर को भी हमने मंथ में कन्वर्ट कर लिया 60 मंथ। तो ये तो मंथली रेट हो गया, उसको एनुअल करना पड़ेगा आपको। तो इस वाले रेट को मल्टीप्लाइड बाय 12 हम लोग करेंगे तो आपका एनुअल रेट आ गया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो तो ये 16.81 आपका एनुअल रेट है इसका लोन का। तो लोन जब आपने लिया तो लोन के ऊपर जो आपको रेट मिलता है, जो आपको पे करना पड़ रहा है रेट, दैट इज अराउंड 16% पर एनम, 16.81% पर एनम। अब सेकंड हमारे पास है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या था? प्रेजेंट वैल्यू जो आपने इन्वेस्ट किया था वो था 40,000, फ्यूचर वैल्यू 57,720 3 years। 3 years आपको कैलकुलेट करना है रेट। अब यहाँ तो सारी चीजें वैसी ईयर्स में है, तो यहाँ कुछ मंथली करने का जरूरत नहीं है। इक्वल टू रेट, ब्रैकेट ओपन, एंड पर में लिख दो 3, PMT 0, PV माइनस, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया इसलिए माइनस आ जाएगा यहाँ पे। FV क्योंकि रिसीव हो रहा है प्लस में रहेगा, टाइप में कुछ नहीं, गैस में कुछ नहीं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे आपका रेट हो गया 13, एग्जैक्ट 13.00। यहाँ पे रेट इज 13% और यहाँ पे रेट इज 16%। किसका रेट ज्यादा है? लोन का रेट ज्यादा है, तो मतलब हमें क्या करना है? लोन को रीपे करना है। सो बिकॉज लोन का रेट ज्यादा है हम लोग रीपे करेंगे लोन को पहले। लोन रेट इज ग्रेटर देन म्यूचुअल फंड रिटर्न। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं अपन। First option है Swati should prepay the loan as the impact on the net worth of the returns compounding on the investment is lower than that of the interest compounding. Second, Swati should prepay the loan as the cost of the debt outstanding is quite high than the returns she is likely to earn on the investment. हमारा आंसर आया कि
हमें लोन को रीपे करना चाहिए। तो दो ही ऑप्शन है जहाँ पे लोन को प्रीपे बोला है इन्होंने, ए और बी। सी और डी में तो इन्होंने बोला कि XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो बेसिकली ये तो वैसे भी आपके एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शन। ए और बी में से आपको सिलेक्ट करना है। तो ए वाला ऑप्शन बोल रहा है कि प्रीपे करना चाहिए बिकॉज it has the impact on the net worth of the return. Compounding on the investment is lower than the interest compounding. तो यहाँ पे compounding slow हो रही है बोल रहा है, but basically it's about the return जो हम लोग earn कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन ये बोल रहा है प्रीपे दी लोन, यहाँ तक ठीक है। एज द कॉस्ट ऑफ द डेट आउटस्टैंडिंग इज क्वाइट हाई। जो डेट आउटस्टैंडिंग है दिस इज क्वाइट हाई, दिस इज द डेट आउटस्टैंडिंग, रेट ऑन द डेट आउटस्टैंडिंग, so this is quite high, then the return she is likely to earn on the investment। इन्वेस्टमेंट पे कितना अर्न कर रही है? 13% अर्न कर रही है। सो दिस इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू द रिटर्न शी इज अर्निंग इन दी म्यूचुअल फंड। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया, करेक्ट आंसर भी हो गया, विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। So Swati should prepay the loan as the cost of the debt outstanding is quite high, then the returns she is likely to earn on the investment। ये क्वेश्चन की फाइल भी है आप लोगों के पास, ये स्टडी मटेरियल में आपके पास है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आप लोगों को ऑप्शंस नहीं देखने क्योंकि ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो सॉल्व हम लोग साथ में करेंगे, तो इसको ध्यान से समझना बिकॉज इसके ऑप्शंस थोड़े से अलग है जो एक्चुअल आंसर है। Now, what is the amount that Swati needs to invest each month to achieve her target corpus for educational expenses if the additional investment will be made in the existing XYZ fund and the past returns reflect the expected future returns? So, what is the amount that Swati needs to invest each month? Every month उसे कितना इन्वेस्ट करना है? तो जब every month इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है PMT का, तो हमें PMT यूज करना रहेगा। टू अचीव अ टारगेट कॉर्पस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंस। एजुकेशनल एक्सपेंस कितना है? सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। इफ द एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन द एग्जिस्टिंग XYZ फंड एंड द पास्ट रिटर्न रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेड फ्यूचर, द कॉस्ट ऑफ द चाइल्ड एजुकेशन इज करंटली ₹5 लाख। इसका कॉस्ट है अभी 5 लाख। इसका जो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 9,74,358। एक बार क्रॉस चेक कर लो कैलकुलेटर से। अगर कभी बाय चांस कैलकुलेटर से अलग आंसर आता है तो आपको कैलकुलेटर वाला प्रेफर करना है, बिकॉज फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला बुक में फॉर्मूला दिया है। एफवी फंक्शन की जगह पे एफवी को हम लोग यूज करें एन्युटी के केस में मोस्टली, और जब भी आपको सिर्फ एफवी बोला जाता है फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए तो बुक में फॉर्मूला यूज किया जाता है, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r टू द पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू इज 5 लाख into 1 plus r to the power n। 1 plus r मतलब 1.1, 1 plus 10% is 1.1 to the power 7। तो 974,358.55 एग्जैक्ट यही आपका आंसर यहाँ पे आया है। तो ये हमारा वैल्यू हो गया जहां तक हमें पहुंचना है, 9,74,000 की कॉर्पस तक हमें पहुंचना है। अब इसके लिए हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा ये पूछा है यहाँ पे। What is the amount that Swati needs to invest each month to achieve her target corpus for educational expense if the additional investment will be made in the existing XYZ fund and the past return reflect the future returns। इसका रिटर्न कितना है? 13% है इसका रिटर्न। तो वही रिटर्न यहाँ पे भी मिलेगा।
सेम रिटर्न हमें यहाँ भी मिलेगा 13% का। तो रिटर्न तो ठीक है, फिक्स हो गया 13%। और क्या क्या चीजें हमें करनी है, अब हमें निकालना है पीएमटी कि अब हमें कितना और एडिशनल पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए द फंक्शन इज पीएमटी। नाउ रेट 30% into डिवाइड बाय 12 भी हुआ तो पीएमटी में अपन करना। पीएमटी क्योंकि मंथली हमें निकालना है तो इसको डिवाइडेड बाय 12 अपन कर देंगे। फिर इसके बाद एन पर तो इसमें 7 इयर्स बचे ना। एन पर विल बी 7 into 12। पीवी माइनस 57 हो गया। क्या अभी कुछ अमाउंट आपके पास पड़ा हुआ है? तो यस, हमारे पास अभी भी कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है 57,000। हमने 40,000 इन्वेस्ट किया था, जो अभी 3 साल पहले 40,000 इन्वेस्ट किया था, जो अभी 57,720 हो चुका है। और इस अमाउंट के अलावा हमें एडिशनल अमाउंट भी इन्वेस्ट करना है। तो ये पीवी हो जाएगा माइनस 57,720। लिखना तो लिख भी सकते हो 57,720। ये रहेगा हमारा कॉर्पस वैल्यू जहां तक हमें पहुंचना है। दिस इज फ्यूचर वैल्यू, यहाँ तक हमें रीच करना है। तो अब आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, दैट इज 6119.90। अगर राउंड फिगर्स में सारे ऑप्शन, तो हो जाएगा 6120। तो 6120 अगर आप एवरी मंथ एडिशनली इन्वेस्ट करोगे, जहाँ पे आपको 13% का रिटर्न मिलता है, सो वो रिटर्न आपको इस कॉर्पस तक लेके जाएगा अगर आपका अभी करंट अमाउंट 57,720 है। अब चलो इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि भाई हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। सो टू क्रॉस वेरीफाई आवर कैलकुलेशन, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालते हैं एफ वी, फ्यूचर वैल्यू। हम लोग निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू। रेट क्या है 13% डिवाइडेड बाय 12, तो पर मंथ का रेट आ गया यहाँ पे। एंड पर 7 इयर्स इंटू 12। पीएमटी एवरी मंथ हम लोग क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग ये वाला अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं अपन। पीवी और भी कुछ आपका प्रेजेंट वैल्यू में है क्या? तो यस, हमारा ये भी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू में है। राइट, तो ये सारी चीजें मिला के अगर आपका पीएमटी एवरी मंथ, ये ऑलरेडी नेगेटिव में इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया, ये पॉजिटिव में लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाया। ये दोनों नेगेटिव में है क्योंकि दोनों इन्वेस्टमेंट्स है। पीएमटी भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया पहले। और क्योंकि G9 वाले सेल में ये ऑलरेडी नेगेटिव में लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया, अदरवाइज मैं माइनस साइन लगा देता। जब ये सारी चीजें आप लोग पे करते हो तो आपका फ्यूचर वैल्यू कितना निकलता है? आपका फ्यूचर वैल्यू आ रहा है 9,74,358.55, विच इज एग्जैक्टली दी कॉर्पस रिक्वायर्ड। तो अगर हम लोग 13% पर एनम के रेट से इन्वेस्ट करते हैं, 7 इयर्स के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, हर महीने हम लोग इतना मनी इन्वेस्ट करते हैं 6120 मनी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। और अभी का जो वैल्यू है वो है 57720। इतना अगर हमारा इन्वेस्टमेंट है तो हमारा जो कॉर्पस है वो पहुंच जाएगा 974,358 पे, जो एग्जैक्टली वही कॉर्पस है जहां तक हमें पहुंचना था। तो इस तरह से हम लोग इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 6120। ये ऑप्शंस में नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। द आंसर विल बी 6120। अब इस सोल्यूशन में क्या मिस्टेक हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट मतलब कभी इन फ्यूचर आप इसको रीड भी करोगे तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो हम लोग पीवी ले रहे हैं वो पीवी हमेशा नेगेटिव आएगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे जो पीवी लिया है दैट इज भी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव लिया है, ये हमें नेगेटिव लिया है।
नाउ इसी का थर्ड क्वेश्चन, शुड स्वाति कंसिडर द परपेचुअल एन्युटी एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर हर रिटायरमेंट? उसके रिटायरमेंट के लिए उसे परपेचुअल एन्युटी वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसके लिए अपन एन्युटी वाला ऑप्शन की कंडीशंस रीड करते हैं। 3 lakh every year from here. So for this, she is scrutinizing a perpetual annuity that will pay her rupees 3 lakh every year from age 50 onward at a yield of 6%. For this, she is required to invest rupees 11,800 for 20 years in this annuity plan. तो ये एन्युटी में उसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हमें पता लगाना है। अब कोई भी प्लान में अगर पूछा गया है कि इन्वेस्ट करें नहीं करें, आपको सीधा रेट ऑफ रिटर्न निकाल देना है। अगर वो रेट फेवरेबल है, जैसे यहाँ पे इन्फ्लेशन इन्होंने क्या बताया है 6.5, तो अगर 6.5 से ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो हम इन्वेस्ट करेंगे, अगर 6.5 से कम रिटर्न दे रहा है तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट। तो ये देख लेते हैं कि भाई ये बीट कर रहा है क्या। हमें कितना मिल रहा है 3 लाख एवरी मंथ, सॉरी एवरी ईयर, 50 ऑनवर्ड। अब परपेचुअल है तो ईयर से मतलब ही नहीं, मतलब कितने साल तक मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं, परपेचुअल मतलब इनफाइनाइट। तो 3 लाख एवरी ईयर मिल रहा है एट द यील्ड ऑफ 6%। तो पर एनएम आपको रिसीव हो रहा है 3 लाख, और इसका जो यील्ड है, तो ये कितने बड़े कॉर्पस के बराबर है। अगर ये जो 3 लाख आपको मिल रहा है 6%, आप अगर किसी बैंक में जाओगे और आप उनको बोलोगे कि मुझे 3 लाख चाहिए एवरी ईयर, बैंक ने बोला हमारा रेट ऑफ रिटर्न तो 6% है एफडी का, तो कितने की एफडी कराओगे तो 3 लाख हर साल मिलेगा। तो आपको 3 लाख को डिवाइड करना है 6% से, 3 लाख डिवाइडेड बाय 6%, तो ये बराबर है 50 लाख की एफडी है। 50 लाख रुपीस की अगर आप एफडी कराओगे तो उस 50 लाख पे जब आपको 6% मिलेगा वो 3 लाख हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 50 लाख की एफडी आपने करा दी, आपको बैंक दे रही है 6% का रिटर्न, 0.06, तो मतलब आपको पर एनम कितना मिल रहा है 3 लाख रुपीस मिल रहा है। तो हमने कैसे निकाला, 3 लाख को डिवाइड कर दिया 6% से तो 50 लाख आ गया, 50 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 6% से तो 3 लाख आ जाएगा। अब इस कॉर्पस तक पहुंचने के लिए, मतलब ये 50 लाख वाले कॉर्पस तक पहुंचने के लिए हमें 20 इयर्स तक 11,800 इन्वेस्ट करना है। इस कॉर्पस तक पहुंचने के लिए हमें ईएमआई एसआईपी लिख देते हैं, जो एसआईपी हमें पे करना है दैट इज 11,800 फॉर 20 इयर्स। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना है ये आप कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, इक्वल टू रेट एन पर कितना है, कितने ईयर्स तक 20 ईयर्स तक हम लोग पे कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मंथली है सारी चीजें तो इंटू 12 हम लोग कर देंगे। टीएमटी कितना है, माइनस इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए माइनस 11। पीवी कुछ है क्या, एफवी कुछ है क्या, 50 लाख, तो 50 लाख तक हमें पहुंचना है, ये 50 लाख हमने सिलेक्ट कर लिया। तो हमारा जो रिटर्न है, जो रेट है वो है 0.44 पर मंथ। हमें पर एनम निकालना है, कंपैरिजन के लिए हमें पर एनम निकालना पड़ेगा हमेशा। तो इस रेट को कर दो इनटू 12, तो आपका पर एनम का रिटर्न कितना है 5.26%। तो आपको जो एक्चुअल रेट मिल रहा है इस परपेचुअल एन्युटी से वो है 5.26% पर एनम। क्या ये रिटर्न आपके इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है?
नहीं बीट कर पा रहा है। तो क्या आपको इस एन्युटी में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस: Yes, Swati should consider the perpetual annuity as it provides an assured regular income. Also, the lower return in the distribution stage is offset by 8.5% return in accumulation stage. ये जो रिटर्न है ये accumulation stage का ही निकला है हमारा. Accumulation stage is when we are investing. SIP जब कर रहे हैं तब का रिटर्न है ये. जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब का रिटर्न है. So this is accumulation stage return. तो ये तो हमारा 5.26 आया है और ये लोग बोल रहे हैं 8.5 है. ये तो फिगर ही गलत है. Yes, Swati should consider the perpetual annuity as the return in the accumulation stage, and the annuity payout stage is assured at 6% and 8.5%. ये भी गलत है. हमारा 5.2 आ रहा है. No, Swati should not consider the perpetual annuity as the rate of annuity is low at 6%, and even though the returns in the accumulation stage is high at 8.5. Again, 8.5 हमारा accumulation में आ नहीं रहा है. 5.26 आ रहा है. No, Swati should not consider the perpetual annuity as the return on investment is low, especially during the accumulation stage at 5.2%. तो 5.2% हमारा आंसर आ रहा है और इस रीजन से हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो ये है इसका करेक्ट आंसर. स्वाति को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज यहाँ पे आपका एक्यूमुलेशन स्टेज का रिटर्न इज वेरी लो. तो ये यहाँ पे खत्म है, लेकिन एक अपन छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आता है कई बार. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि स्वाति हैज अ शॉर्ट टर्म गोल ऑफ बाइंग अ कार कॉस्टिंग रुपीज 6 लाख. द कार डीलर हैज गिवन हर टू पेमेंट ऑप्शंस. वन टू पे रुपीज 6 लाख ओवर 4 years विद जीरो इंटरेस्ट. तो 0% ईएमआई उसका हो जाएगा. सेकेंड, फुल पेमेंट अगर वो करती हैं सो डाउन पेमेंट विल बी ओनली 15%. सॉरी, डिस्काउंट मिल जाएगा 15% का. मतलब 85% अमाउंट उसे पे करना है स्पॉट पे. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन स्वाति को चूज करना चाहिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है. ठीक है. तो कार है 6 लाख रुपीज की. दो पेमेंट ऑप्शन है. तो ऑप्शन वन, ऑप्शन वन में क्या है? 0% ईएमआई. तो यहाँ पे आपकी कार की प्रेजेंट वैल्यू, कार की वैल्यू लिख देते हैं. कार की वैल्यू है 6 लाख. नाउ हमें ईएमआई कितने टर्म में पे करना है? तो हमारा एन पर है 4 years. 4 साल तक हमें ये पे करना है. और इसका जो ईएमआई है वो जीरो है. कुछ भी ईएमआई हमें नहीं पे करना है. मतलब बेसिकली हम लोग मंथली जब ईएमआई पे करेंगे तो हमें ईएमआई कितने का पड़ेगा? ईएमआई पड़ेगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 4. अभी 4 years मतलब ईयरली हो जाएगा, हमें तो मंथली निकालना है. तो 4 into 12 कर दो. 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 into 12 मतलब 6 लाख डिवाइडेड बाय 48 मंथ्स हमारे पास है. क्या गया? 12,500. मतलब 12,500 का ईएमआई हमें पे करना है फॉर 4 years, 48 months. करेक्ट. तो 48 months तक एक लाइन इंसर्ट कर ही देते हैं. 4 years में इसको अपन लिख सकते हैं 48 months. तो 48 मंथ्स हम लोग लेके चल रहे हैं. 48 मंथ्स में जो ईएमआई है वो आपका 12,500 आ जाएगा पर मंथ. पर मंथ का ईएमआई है. ठीक है. तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी कार की? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार सो इक्वल टू पीवी.
मतलब हमें कार कितने की पड़ रही है वो हमें देखना है। तो रेट में हम लोग लेंगे रेट ऑफ इन्फ्लेशन, वो भी लिख देते हैं अपन पहले। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है? बिल्कुल 6.5. 6.5%, correct. So rate of inflation is 6.5%. So PV rate is 6.5%. And per And by वही 48 months. 48। अच्छा, फिर रेट को भी हमें मंथ में करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं। ये हो गया आपका एन पर 48 मंथ्स, कॉमा फिर पीएमटी एवरी मंथ आपको कितना पे करना पड़ रहा है? 1200. तो क्योंकि पे करने से माइनस कर देंगे, माइनस 1500 सिलेक्ट कर लो। एफ वी कुछ भी नहीं, टाइप कुछ भी नहीं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आपकी जो कार की प्रेजेंट वैल्यू है वो आ रही है 5,27,000। एक तरह से जो 6 लाख रुपए की कार है वो आपको 5,27,000 की पड़ रही है, क्योंकि हमने 0% ईएमआई पे इसको लिया है। इन्फ्लेशन 6% का है, 6.5% का है। तो आप ईएमआई भर रहे हो 12.5 हर महीने 4 साल तक। लेकिन ये जो ईएमआई हम लोग पे कर रहे हैं ये इन्फ्लेशन एडजस्ट हमें करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन तो बढ़ता जा रहा है लेकिन ईएमआई हम लोग वही कम की कम भर रहे हैं, हमें इंटरेस्ट भरना ही नहीं है। तो इसका जो बेनिफिट है वो बेनिफिट हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट किया। तो 6 लाख रुपीज में अगर आप इन्फ्लेशन का बेनिफिट ऐड कर दोगे, क्योंकि बेनिफिट हो रहा है, हम आगे चल के भी 12.5 पे कर रहे हैं लेकिन महंगाई तो बहुत बढ़ चुकी है वहां पे। तो बेनिफिट ऐड करने के बाद हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया? 5,27,000। तो हमें एक्चुअली कार पड़ रही है 5,27,000 की, क्योंकि 0% ईएमआई है। जो सेकेंड ऑप्शन है हमारा वो है फुल कैश पेमेंट, ऑप्शन 2 फुल कैश पेमेंट। तो अगर ये कैश पेमेंट आप करते हो तो कैश पेमेंट कितने का पड़ेगा? कार कितने की पड़ेगी? कार की वैल्यू है 6 लाख। अब देखो कैश डिस्काउंट कितना है? 15%। तो कार की वैल्यू बढ़ेगी, लेस माइनस 15%, 5,10,000 की हमें कार पड़ती है। तो 6 लाख का 10% हो जाता 60,000 और 15% हो जाएगा 90,000। तो मतलब एक तरह से हमें 90,000 का डिस्काउंट मिल रहा है कैश में। तो हमने 6 लाख में से 90,000 माइनस कर दिए तो हमें 5,10,000 की कार पड़ रही है। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू 5,27,000 आ रही है और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू 5,10,000 आ रही है। तो हम लोग किसको प्रेफर करेंगे? 5,10,000 को। So we understand that reading the complete book feels a bit boring, इसीलिए हम लोगों ने आपके लिए वीडियो लेक्चर्स फॉर्म करे हैं। So ये जो 120 प्लस वीडियो लेक्चर्स हैं इसमें कंप्लीट डिटेल में हमने एक एक टॉपिक एक्सप्लेन किया है, सो दैट आपको पूरी बुक रीड करने की जरूरत ना पड़े। So even without reading the book you can understand the concepts very easily by watching these videos। और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब कंसेप्चुअल आते हैं। So ये थ्योरेटिकल एग्जाम तो है नहीं कि हमें बहुत ज्यादा डिटेल लिखना है, हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सो द एम ऑफ दीज वीडियोस इज टू क्लियर ऑल योर कंसेप्ट्स। अब जैसे बुक में अगर एक डेफिनेशन लिखी है तो उस डेफिनेशन का क्या मीनिंग है और उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम लोगों ने वीडियोस में डिटेल में समझाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मेड 40 प्लस डिटेल्ड केस स्टडीज वीडियो जो कंप्लीटली डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द केस स्टडीज। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए इसको मैंने अंडरलाइन किया है। केस स्टडीज के सारे वीडियो 1 आवर ईच के हैं। सो अगर आप 10 एट एनवी का कंप्लीट कंटेंट देखोगे सो द कंटेंट इज अबव 160 वीडियोस। सो 120 वीडियोस आपको कंटेंट के मिल जाएंगे और 40 वीडियोस आपको केस स्टडीज के मिल जाएंगे। टोटल यू विल फाइंड 160 videos of NISM 10A and 10B both combined. Then there are frequently asked questions as well. So देखो एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी।
वन इज जो बुक का कंसेप्ट हैं, जो बुक का कंटेंट है वो आपको क्लियर होना चाहिए, एंड सेकेंड इज जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं वो किस पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं, प्लस उनको सॉल्व कैसे करना है वो हमें बनना चाहिए। सो केस स्टडीज एंड क्वेश्चंस ये दोनों हम लोगों ने इसमें कवर किया है। तो आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपका डायरेक्शन सही है कि नहीं, वो ये फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझ में आएगा कि आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, क्या हमसे वो क्वेश्चंस के आंसर्स बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। Then obviously the syllabus is updated. So जो latest syllabus है उसी के according updated videos आपको यहाँ पे मिलेंगे, and even the questions and the case studies are as per the updated syllabus. Now videos में जो सबसे common problem I have experienced is कि वहाँ पे आपको कोई guide करने के लिए नहीं होता है। So videos हैं, आप लोग videos देख के काफ़ी सारी चीज़ें समझ लेते हैं, लेकिन there can be 1 to 2% doubts, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आया, कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुए। So for that we have even included one-to-one doubt clearing session with expert faculty members, and that too without any additional cost. So कोई additional cost यहाँ पे included नहीं रहेगी, and we will provide you one-to-one doubt clearing session. The reason being हमारा aim है कि आप एग्जाम क्लियर करें फर्स्ट अटेम्प्ट में, so that you can proudly say that yes Edufinaco के कंटेंट से I've cleared the exam in first attempt. Then you will also get the complete summary of the content, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे अगर आपको लास्ट डे पे रिवीजन करना है, सो वीडियोस हम लोग एक दिन में सारे वीडियोस नहीं देख सकते, बहुत लेंदी वीडियोस हैं ये, लेकिन हम लोग लास्ट डे पे चैप्टर समरीज को जरूर गो थ्रू कर सकते हैं, सो दैट लास्ट मोमेंट का जो रिवीजन है वो हम लोग प्रॉपर वे में कर पाए। एंड लास्टली यू विल गेट दी सपोर्ट until you clear the exam, because as I said our only goal is to get you clear in the first attempt itself. तो आप लोग प्रॉपरली पढ़ाई करके और एग्जाम को क्लियर करें, यही हमारा एम है, यही हमारा गोल है। So that is it from this video guys. In case you face any query, any issue, आपको कुछ भी डिस्कस करना है, you can feel free to contact us on 8889302230. You can even reach us on www.edufeneco.com. Thank you.